Let's begin with the topic transport through plasma membrane. ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीन्स कि मटेरियल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे अलाउ करती है, कैसे अलाउ नहीं करती है उनकी एंट्री और एग्जिट को, या उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल कैसे होता है. सो इट रिक्वायर टू प्रोसेसेस. वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. Active transport, as the name suggests, active, energetic. The transport which required energy, that is known as active transport. So, जिस ट्रांसपोर्ट में जब एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ऐसा ट्रांसपोर्ट हम कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन में भी कर सकते हैं. मीन्स के सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो सब्सटेंस हैं बट नीडेड हैं और उनकी कंसंट्रेशन कम है, वो अपने आप से डिफ्यूज़ नहीं हो सकते. दैट्स वाई देर इज़ नीड ऑफ एनर्जी एंड हम उनको पुश करके, दैट मीन्स सेल मेम्ब्रेन में तो हम पुश नहीं करेंगे, लेकिन एनर्जी की हेल्प से प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनको अपने अंदर एंट्री अलाउ करेगी. ठीक है, तो इट इज़ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. दैट मीन्स कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में ही नहीं, इनका मूवमेंट जो है लो टू हाई कंसंट्रेशन होगा. दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इसी के अपोजिट पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पैसिव ट्रांसपोर्ट डू नॉट रिक्वायर एनर्जी एंड दैट इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. मीन्स कि वो कंसंट्रेशन के साथ साथ चलेगा, जैसे हाई टू लो की तरफ जो फ्लो अपने आप से हो जाए, आसानी से हो जाए. ठीक है, तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन उनका फ्लो होगा. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस. as the name suggests, endo inside, cytoplasm. So the movement of material inside the cytoplasm, inside the cell, is known as endocytosis, and the movement of material outside the cytoplasm or cell, that is known as exocytosis. Exo means out, exit, remove karna. Endocytosis, on the basis of material, it is of further two types. Phagocytosis, engulfing of food particles, यानी के सॉलिड मटेरियल्स के अंदर का इनटेक कहलाता है फैगोसाइटोसिस, एंड रिमूविंग ऑफ मटेरियल एंड इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल, दैट इज नॉन एज पिनोसाइटोसिस. क्योंकि एंडो मीन्स इनसाइड, अंदर लेके जाना मटेरियल्स को. सेल के दो प्रोसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंसेस, लिक्विड एंड सॉलिड. कुछ बुक्स में ये दिया हुआ है, आपको मिल जाएगा. वैसे आपके एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये अलग से आपको डिस्कस नहीं किया है. एंडोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस बोथ आर सेम. engulfing of food particle or intake of solid particles. For example, amoeba. Amoeba engulf the food by the process of phagocytosis or endocytosis inside the cell, and that is the part of active transport. So next, passive transport. It is further of two types. One is diffusion and osmosis. Diffusion and osmosis both are almost a similar process, but one main difference, and we can say one thing which make a great difference between these two, that is presence absence of selectively permeable membrane. The transport of material without selectively permeable membrane from high concentration to low concentration is called diffusion, and the transport of material through semi-permeable membrane from high concentration to low concentration is called osmosis.
So this is the difference. It requires semi-permeable membrane very essentially, and it doesn't require any membrane. हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ सिलेक्शन ऑफ मटेरियल हो रहा है और यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल नहीं हो रहा है। एक डिफरेंस ये भी है कि इट मेनली द वर्ड इज मेनली अकर इन गैसेस एंड सॉलिड्स and it mainly occur in liquid concentration. Now we are going to discuss about the types of osmosis. Osmosis की types के बारे में हम discuss करेंगे, because osmosis is movement of water molecules mainly through a selectively permeable membrane or plasma membrane from high concentration to lower concentration, or from a region of high concentration to low concentration. So it includes endoosmosis and exoosmosis. Movement of selected substance यानी कि liquid or water inside the cell is called, through a selectively permeable membrane, is called endoosmosis. Movement of water through a selectively permeable membrane inside the cell is called endosmosis, and movement of water outside the cell through a selectively permeable membrane is called exoosmosis. So osmosis, we can say osmosis is the diffusion of free water molecules but through a semi-permeable membrane. Now, in hypertonic solution or hypertonic solution, we can find out the endosmosis and exoosmosis. उसके लिए अभी हमें पहले जानना होगा कि एंडोस्मोसिस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है। उससे भी पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी कि मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस लाइक सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बाकी आप केमिस्ट्री में अपना पढ़ेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस बता देती हूँ। सॉल्यूशन कंटेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट मोस्टली अगर हम नॉर्मल बात करें जनरल, तो लेस कंसंट्रेशन में होता है और सॉल्वेंट ज़्यादा। सो मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल वाटर एंड सॉल्ट। वाटर इज द सॉल्वेंट, और आपने पढ़ा भी है अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर, वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जो अपने अंदर दूसरे को घोलने की क्षमता रखता है। सोल्यूट वो सब्सटेंस है जो घुलता है किसी और के अंदर, एंड दैट इज सॉल्वेंट, जिसमें वो घुलता है। ठीक है, तो सॉल्यूशंस आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं, इसीलिए इन सॉल्यूशंस को हम कहते हैं ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस। इन सॉल्यूशंस को हम कहते हैं ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस। osmotic solutions. Osmotic solutions. Osmotic solutions: isotonic solution, hypotonic solution, hypertonic solution. सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन लेस है या मोर है या ज़्यादा है या कम है, ये डिसाइड करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशंस को। आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन in which concentration of solute is always equal to the concentration of solvent. So there will be no change in the cell size, no change in cell size. Hypertonic solution, the solution which contain less solute, ion और सॉल्ट
concentration and solvent is more. ये ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस तरीके के इस सॉल्यूशन के अंदर वाटर की मूवमेंट जो है वो इनसाइड द सेल होगी, इनसाइड सेल, वाटर मूवमेंट, water movement inside cell and cell size will enhance, सेल का साइज बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बात करें हम रेजिन्स की, किशमिश को अगर हम पानी में रखते हैं तो वो स्वॉल हो जाती हैं, ठीक है। सो हियर विल बी द प्रोसेस ऑफ एंडोऑस्मोसिस, यहाँ पर एंडोऑस्मोसिस होगा, एंडोऑस्मोसिस। अब बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट concentration is more and solvent concentration less. So size of cell shrink, सिकुड़ जाएगा। क्यों? Because of water movement outside the cell. So here will be exoosmosis. वाटर सेल से बाहर मूव करेगा और एक्सोऑस्मोसिस हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से सेल का साइज श्रिंक हो जाएगा। तो ये था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको मैं आपको इस टाइप ऑफ सॉल्यूशन को और मूवमेंट थ्रू सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैं आपको डायग्रामेटिकली नेक्स्ट वीडियो में शो करूंगी और आपको उससे समझ आएगा कि किस तरीके से सेल के साइज में डिफरेंस आया है और किस तरीके से सेल का साइज वेरी किया है और उन टर्म्स को हम क्या कहेंगे, वहाँ पे क्या टर्म यूज़ की जाती है जब सेल का साइज वेरी करता है। तो एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस कैसे हो रहा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।